Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. और बच्चों आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया है यूनिट 3 और यूनिट 3 है क्लास 11th का entrepreneurial journey. It's a very important unit और आज जो हमारा टॉपिक है वो है identify your personality type before starting a business venture. तो हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी टाइप है, तो किस प्रकार की पर्सनैलिटी टाइप बिजनेस में किस प्रकार से आगे बढ़ती है, ग्रो करती है, बिजनेस एक्सपैंड करती है एंड इन टर्न दे सपोर्ट देयर एंड हेल्प देयर कस्टमर्स अ लॉट बाय देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पर्सनैलिटी टाइप क्या है बिफोर स्टार्टिंग अ वेंचर. So let's have a look toward all these 8 personality types in order to understand, entrepreneurial journey better. तो आज के सेशन में हम 8 personality types लेंगे. The first point is personality traits and entrepreneurial success. फिर हम personality types लेंगे trailblazers, go-getters, managers, motivators, authoritarians, collaborators, and diplomats. And believe me on this, for sure, you will get a question in the examination based on these specific points. So let's start today's class, Unit 3, Entrepreneurial Journey. And today we are going to talk about the personality traits of entrepreneurs. So the first point is personality traits and entrepreneurial success. So let's take up the first point. An article by Bill Wagner explores the role of personality in achieving success as an entrepreneur. तो बच्चों एक आर्टिकल लिखा था बिल वैगनर ने और अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज necessary specific personality of an entrepreneur which makes him achieve his or her targets in the field of business. And on the basis of these personality traits, entrepreneurs can recognize themselves that how well they can do the business and where they are going to face challenges. तो बिल वैगनर ने कहा कि रोल ऑफ पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग सक्सेस एज एन entrepreneur. That's an important point. Very important point. Second point, recent studies suggest that successful entrepreneurs often share common personality traits, serving as key indicators for their accomplishments. तो recent studies ये बताती हैं कि successful entrepreneurs के अंदर common personality traits होते हैं और which serve as indicators कि वो बताते हैं कि क्यों कुछ entrepreneurs successful होते हैं और कुछ entrepreneurs they face more challenges. Aligning business ventures with one's true personality enhances the likelihood of success and fulfillment. That's a very, very important point. बच्चों अगर आपका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है अगर आपके बिजनेस के साथ उसे अलाइन कर दिया जाए तो आपको लग पता जाएगा कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं या सक्सेसफुल नहीं हो सकते. Aligning business ventures with one's true personality enhances the likelihood of success and fulfillment. Fourth point, every individual possesses the potential to build a thriving business. हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ा सकते हैं. हर व्यक्ति के अंदर ये पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड दे आइडेंटिफाई द राइट अपॉर्चुनिटी. और अगर उन्हें राइट अपॉर्चुनिटी का पता लग जाए तो वो दिल use it properly, that opportunity in their field.
Fifth point is a crucial one, self awareness. खुद सनाशी, खुद की पहचान plays a crucial role in bridging the gap between personal characteristics and the demands of a chosen opportunity. अगर आपको अपने बारे में पता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी आई है तो मेरा पर्सनैलिटी टाइप इस प्रकार का है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर लूंगा, यूज कर लूंगा। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंगली हमारा पर्सनैलिटी टाइप नहीं है तो खुद से अंदर से पता चल जाता है कि मैं इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू बिल वैगनर, टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदर you are capable of doing business or you are you cannot do that business the way you wanted to do it। तो कई लोग सोचते हैं ना कि मेरे बहुत कैपेबिलिटीज है, पर जब मैं आपके सामने ट्रेल ब्लेजर्स, गो गेटर्स, मैनेजर्स, मोटिवेटर्स सबकी बात करूंगा, आपको पता लगेगा कि आप इन 8 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कहाँ फॉल होते हैं एंड हाउ यू कैन एडजस्ट योर सेल्फ इन ऑर्डर टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज। तो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट पॉइंट। हम पहला पॉइंट ले रहे हैं ट्रेल ब्लेजर्स का। ट्रेल ब्लेजर्स हु आर पायोनियर्स इन बिजनेस। तो बच्चों हिंदी में ट्रेल ब्लेजर्स को कहा जाता है पथिक। फर्स्ट पॉइंट, entrepreneurs can be categorized into 7 types where trailblazers are leading the pack. On number 1 position they are trailblazers। अब इनकी क्या क्या ट्रेड्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं, आज की क्लास में आपको पता चलेगी। दे आर ड्रिवन, कॉम्पिटिटिव एंड गोल ओरिएंटेड। Trailblazers excel in the fields such as medicine, technology, finance, law and consulting। तो बच्चों वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और जो स्पेसिफिक फील्ड्स उनके लिए निर्धारित है वो है दवाइयों की लाइन दैट इज मेडिसिन, टेक्नोलॉजी की लाइन, फाइनेंस की लाइन, लॉ की लाइन और कंसल्टिंग की लाइन। और जब बात करते हैं ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब है दे आर गो गेटर्स, उनको हल्का सा एक स्पार्क चाहिए and they are going to finish off their task the way they wanted it to be। Third point, while strategic thinkers, their challenge lies in managing people। उनका जो बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रेल ब्लेजर्स का वो है, वो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स तो है बट जो उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट लाइज इन मैनेजिंग पीपल। टीम मैनेजमेंट में उनका हाथ जरा कसा हुआ है। दे कैन नॉट हैंडल टीम्स प्रॉपर्ली। हु? ट्रेल ब्लेजर्स। कौन है जो ड्रिवन है, कॉम्पिटिटिव है, गोल ओरिएंटेड है, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स है, पर उनका जो टीम हैंडलिंग है दैट इज इज नॉट परफेक्ट। ट्रेल ब्लेजर्स आर बेटर लीडर्स देन मैनेजर्स। ये प्रबंधक वीक होते हैं, लीडर्स अच्छे होते हैं। कौन? ट्रेल ब्लेजर्स। एंड ऑफन रिक्वायर्स अ टीम टू हैंडल द ह्यूमन साइड ऑफ द बिजनेस। और कई बार इनको एक टीम की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को हैंडल करने के। प्रेफरिंग इनोवेशन, दे थ्राइव एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अ बिजनेस। ये हमेशा सोचते हैं कुछ नया किया जाए, कुछ नया लाया जाए, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो चाहे सर्विसेज हो, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स। दे थ्राइव एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अ बिजनेस। और वो अपने बिजनेस के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते रहते हैं, टेकिंग आइडियाज टू द नेक्स्ट लेवल। तो बच्चों ट्रेल ब्लेजर्स की जो क्वालिटीज है कि वो ड्रिवन है, कॉम्पिटिटिव है, गोल ओरिएंटेड है, और वो मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लॉ और कंसल्टिंग की फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अगर किसी के अंदर ये इंटरेस्ट है तो ही और शी शुड कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ ट्रेल ब्लेजर। और जो एक सिग्निफिकेंट एक चैलेंज है उनके अंदर कि वो टीम्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, आई बिलीव द पैसेज ऑफ टाइम बाय वर्किंग ऑन दिस deformity, or you can call it a weak skill, you can polish this skill and you can become masters of it। So trailblazers, they are the pioneers in business। Go-getters, go-getters are the ambitious achievers। अब go getters कौन है? साहसी। those who are जो चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, साहसी प्राप्त करता। ओके, go getters with high dominance and sociability
रिप्रेजेंट मोस्ट फाउंडर्स। तो बच्चों ये हाईली डोमिनेटिंग होते हैं, सोशल होते हैं, और ये जितने भी दुनिया में आप फाउंडर्स देखेंगे उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द फाउंडर्स आर फ्रॉम दिस स्पेसिफिक ट्रेट, गो गेटर्स। मतलब कुछ हो जाए अपने काम को पूरा कर। इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटिटिव, इंडिपेंडेंट है, सारा काम खुद से करते हैं, और किसी के साथ compete करने में इन्हें 1 मिनट का भी ना, या 1 मिनट भी सोचना नहीं पड़ता। दे आर वेरी गुड इन competing with people. दे एक्सेल इन रिटेल, रिटेल इनके लिए बहुत अच्छा काम है, एंड एम्प्रेस न्यू बिजनेस एनवायरमेंट्स। और अगर नया बिजनेस इनको दिया जाए तो उस एनवायरमेंट में भी जेलअप अच्छे से हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई डोमिनेंस and sociability. They are very, very social as well. Third point, their initiative and sense of urgency make them effective leaders and collaborators. Now, this is a wonderful point. Wonderful. वो कहते हैं वो हर काम में ना इनिशिएटिव लेते, एक्शन ओरिएंटेड हो। यहाँ पे जो वर्ड है इनिशिएटिव का मतलब हो गया एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड। और हर काम में FWIS यूज करते हैं, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, अर्जेंसी रखते हैं, भाई ये काम स्टार्ट हो गया, इसे फिनिश भी करना है। तो दे बिकम इफेक्टिव लीडर्स, एंड दे कोलैबोरेट एंड डेवलप प्रॉपर्ली with the teams and other people. Go getters do not need to be experts in the field to start a business. इन्हें अपने आप को एक्सपर्ट मानने की जल्दी नहीं है, ये सोचते ही नहीं कि एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, बट येट दे स्टार्ट। दे लर्न एंड कोलैबोरेट एज दे गो। वो लर्न करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, सीखते हैं, एंड देन दे मूव ऑन, मेकिंग देम अडेप्टेबल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये अडेप्टेबल, ये सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हैं, सीखते हैं, एंड देन दे help themselves and the people those who are associated with them. It's a beautiful trait of an entrepreneur. They are go getters, और मेजॉरिटी आपको जो फाउंडर्स हैं वो गो गेटर्स मिलेंगे। So they are also adaptable as well. तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं इनके, एंड आई एम अंडरलाइनिंग दोस ट्रेड्स। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, मैनेजर्स, जो प्रबंधक है, स्ट्रेटेजिक लीडर्स। ये रणनीति बनाकर लीड कर, कौन? मैनेजर्स। प्लान करेंगे, फिर रणनीति बनाएंगे उस प्लान को फुलफिल करने के लिए, या इम्प्लीमेंट करने के लिए, या उससे रिजल्ट निकालने के लिए, एंड देन दे बिकम स्ट्रेटेजिक लीडर्स। मैनेजर्स dominant, independent, and focus on processes and outcomes. तो जो मैनेजर्स का काम है वो है नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फाइनल ऑब्जेक्ट। और वो क्या है कि प्रोसेस के बेस पर आउटकम्स लेके आने, रूल्स नॉर्म्स फॉलो करने हैं, और उसके बेसिस पर आउटकम्स लेके आने हैं। आप जनरली देखते होंगे बच्चों, जब भी कभी किसी व्यक्ति को किसी कंपनी में हायर किया जाता है तो वो उनके स्किल्स के बेसिस पर हायर किया जाता है, और जब फायर किया जाता है तो उनके एटीट्यूड के बेस पर फायर किया जाता है। सिमिलरली ये जो मैनेजर्स हैं ये प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, और जिनका मेजर फोकस होता है वो होता है रिजल्ट, कि रिजल्ट आना चाहिए कंपनी के लिए। कितनी महत्वपूर्ण बात। तो अगर आपको लगता है क्वालिटीज आप में भी है तो यू कैन बी अ मैनेजर एंड एन एंटरप्रेन्योर एट द सेम टाइम। थर्ड पॉइंट, लॉयल एंड पेशेंट। ये लॉयल होते हैं, बहुत ही वफादार होते हैं, और ये पेशेंस भी रखते हैं। They thrive in roles require competitive selling and excel at managing systems and technologies. तो वो थ्राइव करते हैं जहां पर कंपटीशन के साथ where there is competition and they have to sell, they thrive over there, and they excel at managing systems. अगर सिस्टम को मैनेज करना है, they excel over there, and in managing technology. Who? Managers. Managers work well independently and may face challenges in managing others. तो ये हमेशा अच्छा काम करते हैं जब इन्हें इंडिपेंडेंस मिलती है, बट जब ये दूसरों के साथ काम करते हैं तो इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नेसेसिटेटिंग स्किल टीम मेंबर्स फॉर द पीपल साइड ऑफ द बिजनेस। और ये हेल्प करते हैं
skilled team members को in order to help the business to grow and thrive. So managers work well independently and may face challenges in managing others, necessitating skilled team members for the people side of the business. और ये जो skilled team members हैं उनको promote करते हैं, support करते हैं in order to build up the business the way they wanted them to build. So managers. Next are motivators. Motivators are encouragers, प्रेरक, और इन्हें कहा जाता है कैटलिस्ट फॉर चेंज. Let's take up the first point. Motivators with high sociability and dominance excel under pressure and autonomously. तो बच्चों ये हाईली सोशेबल होते हैं मोटिवेटर्स. मोटिवेटर्स के पास अपना एक मोटिव होता है कि मैंने कुछ अचीव करना है. दे आर डोमिनेटिंग एज वेल बिकॉज एक स्पेसिफिक गोल है, तो whosoever do not let them finish off that goal, तो उसे डोमिनेट करते हैं. दे एक्सेल अंडर प्रेशर एंड ऑटोनॉमसली. अगर किसी काम को पूरा करने में डेडलाइंस होती हैं या प्रेशर दिया जाता है, सो दे एक्सेल इन दैट स्पेसिफिक फील्ड. एंड ऑटोनॉमसली अगर इंडिविजुअली इनको काम करने की इजाजत मिल जाती है, they then they perform better when they work autonomously. So highly sociable, dominance, excel under pressure and autonomously. Skilled consensus builders, they succeed in people centric business. और ये काम इस प्रकार करते हैं कि लोग इनके साथ मिल जाते हैं, ये लोगों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं. कंसेंसस बिल्डर्स, ये लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, जहां पर मेजोरिटी होती है उसी तरफ ये काम करते हैं. कौन? मोटिवेटर्स. दे सक्सीड इन पीपल सेंट्रिक बिजनेस. ऐसा बिजनेस जहां पर लोगों का सम्मान हो, लोगों को तवज्जो दी जाए, ये वहां पर बहुत थ्राइव करते हैं. कौन? मोटिवेटर्स. मोटिवेटर्स आर अडेप्ट एट इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स, थ्राइविंग इन रोल्स लाइक लीडरशिप और सेल्स. तो ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को ये विन कर लेते हैं. दे नो हाउ टू हैंडल पीपल. अगर कोई बहुत एग्रेसिव है, दे नो हाउ टू handle that situation, that person as well. और कभी कभी whenever you have to handle multiple situations where trouble is there, they are the best people around available. Thriving in roles like leadership and sales. Their strength lies in nurturing relationships. ये relationships को बहुत nurture करते हैं, support करते हैं, और चाहते हैं कि वो relationship फलीभूत हो. Making them ideal for business focused on long term client retention and team collaboration. तो businesses के लिए ये लोग बहुत उपयोगी हैं और इनका फोकस रहता है लॉन्ग टर्म क्लाइंट को रिटेन करने में और टीम कोलैबोरेशन. तो मुझे लगता है शायद मेरे अंदर भी क्वालिटीज है कि आई नर्चर रिलेशनशिप्स, मैं कंसेंसस बिल्डर हूँ और लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिटेंशन पर मैं काम करता हूँ. एंड आई लाइक people collaborating in a team. So motivators, they are catalysts for business. They bring a big catalyst for change. They bring a big change when they are around. Authoritarians. Authoritarians are people, those who are adhikarvadi. Authority. They are the backbone of the business. How they are the backbone of the business? With the help of following traits, you are going to get that. Authoritarians, adhikarvad. Authoritarians form the backbone of society, excelling in detailed and tactic oriented roles. तो ये सोसाइटी की बैकबोन है. कौन? जो अथॉरिटी से काम करते हैं, अधिकारों पे काम करते हैं, और दे एक्सेल इन डिटेलिंग. ये शॉर्टकट्स पर काम नहीं करते, डिटेल्स पर काम करते हैं. आप मेरी बात याद रखिएगा बच्चों, जो व्यक्ति डिटेल्स पर काम करता है ना, उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है. टैक्टिक ओरिएंटेड रोल्स, और ऐसे रोल जहां पर टैक्टिक्स यूज होते हैं, स्किल्स यूज होती हैं, दे आर अ बेस्ट फिट ओवर देयर. वेल, नॉट ऑलवेज नेचुरल फाउंडर्स. ये हमेशा नेचुरल फाउंडर्स नहीं होते बिजनेसेस के. दे थ्राइव एज डिस्ट्रीब्यूटर्स. ये कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने में बहुत एक्सेल करते हैं, फ्रेंचाइजीज चलाने में, और ओनर्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के ओनर्स बनने में ये बहुत ज्यादा कामयाब हो पाते हैं. पेशेंट
एंड कोऑपरेटिव, बहुत पेशेंस, इनमें बहुत धैर्य है, और very cooperative. They help people, they help others more than themselves. They excel in rule bound environment, जहां पे rules होते हैं और rules के ऊपर काम किया जाता है. They always excel over there. Who? Authoritarians. Ensuring customer loyalty and, अरे चाहते हैं कि कस्टमर्स इनके साथ लॉयल रहे, ये कस्टमर्स के साथ वाइस वर्सा लॉयल रहे, और तभी ग्रोथ. Authoritarians may find success in franchisees and businesses that align with their expertise. और इन्हें हमेशा सक्सेस मिलता है फ्रेंचाइजीज चलाने में, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने में, ओनर्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस बनने में, एंड दे अलाइन when businesses provided them on the basis of their expertise. तो ये हमेशा उस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं. ये सबके साथ होता है, पर मेजरली इनके साथ खास कर authoritarians, and they are the backbone of the society. Collaborators, सहयोगी, people focused entrepreneurs. और इसके बाद हम डिप्लोमेट्स पर बात करेंगे. Collaborators distinguished by sociability thrive in people oriented business. They are very social and they thrive where too many people they work, and there is people orientation is there. कंपनी हमेशा लोगों के हिसाब से काम करती, मींस गुड पीपल आर देयर, तो कंपनी सोचती है समटाइम्स दे नीड टू वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. तो पीपल ओरिएंटेड बिजनेसेस में, और जहां पर लोगों को सपोर्ट और सहयोग दिया जाता है, खासकर एम्प्लॉइज. कौन? कोलैबोरेटर्स. दे एक्सेल इन कस्टमर सर्विस एंड रिटेल. कस्टमर सर्विस और रिटेल में बहुत एक्सेल करते हैं, यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस टू कन्विंस अदर्स. और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, दे कैन इजिली कन्विंस. Collaborators benefit from partners with a more aggressive approach to a new business development. ये पार्टनर से बेनिफिट हमेशा लेते हैं. इनका जो अप्रोच है वो एग्रेसिव है. एग्रेसिव मींस रिजल्ट ओरिएंटेड, गुस्से वाला नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड. एंड दे लव डेवलपिंग न्यू बिजनेस डेवलपमेंट. और ये चाहते हैं कि नया बिजनेस डेवलप कर सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स. Their sociability makes them effective in warm selling environments. वो बहुत सोशल होते हैं, और जहां पर ऐसी एनवायरमेंट मिलती है where people appreciate each other, where people respect each other and value each other, तो वहां पर उस एनवायरमेंट में they work very effective. Where prospects are drawn in through advertisements or letters, और जहां पर prospects आते हैं through advertisements or letters, so they have got a very convincing way of handling people. So, collaborators, people focused entrepreneur. And last but not the least, diplomats, specialist in action. ये हर किसी को होना चाहिए. डिप्लोमैटिक, जिसे कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है कूटनीतिज्ञ. डिप्लोमैट्स, दे आर रेस्टलेस, इन्हें आराम पसंद नहीं है. दे आर अडेप्टेबल, ये फटाफट से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं. वर्क वेल अंडर प्रेशर, प्रेशर के नीचे बहुत अच्छा काम करते हैं. एंड एक्सेल इन वेरी टास्क, जो मर्जी टास्क आप इन्हें दे दीजिए तो उसमें आपको एक्सेल होकर दिखा. हु? डिप्लोमैट्स, कूटनीतिज्ञ. विद अ हाई सेंस ऑफ अर्जेंसी, दे मल्टीटास्क इफेक्टिवली एंड अडेप्ट इजिली टू चेंज. और हाई सेंस ऑफ अर्जेंसी पर काम करते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीपल काम एक साथ कर लेते हैं. एंड अडेप्टेबल टू इजिली टू चेंज, और चेंज होता है तो एकदम से अपने आप को भी उसी चेंज में साथ ले जाते हैं. ये नहीं कि रिजिड बन गए जी मैं चेंज नहीं होगा. दे आर वेरी अडेप्टेबल टू द चेंज. कंसिडर्ड स्पेशलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स, डिप्लोमेट्स ब्लेंड सोशियबिलिटी एंड ड्राइव. तो इन्हें स्पेशलिस्ट एंटरप्रेन्योर माना जाता है. ये सोशल होकर पुशी होते हैं, सोशल भी रहते हैं, और सोशल होके काम निकलवाना भी इनको आता है. दे शाइन इन रिटेल, ये रिटेल में बहुत शाइन होते हैं, जिसे हम खुदरा व्यापार कहते हैं. एंड पीपल ओरिएंटेड एनवायरमेंट, जहां पर लोगों का सम्मान, लोगों को सहयोग किया जाता है. एक्सेलिंग इन क्लाइंट रिटेंशन, और क्लाइंट को रिटेल करने में इनका कोई सानी नहीं. दे आर द बेस्ट. गुड डिप्लोमेट्स. वाइल वेल लाइक, इन्हें बहुत पसंद किया जाता है. दे मे नीड टू डेलीगेट टू मोर रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल फॉर सक्सेसफुल लीडरशिप. और ये अपने काम डेलीगेट भी करते हैं,
सारा काम खुद से नहीं करते, और ऐसे इंडिविजुअल्स को जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और इनके बिहाव पे इनकी तरह ही रिजल्ट्स लाने के लिए काम। तो दीज आर डिप्लोमेट एंड दे आर स्पेशलिस्ट इन एक्शन। सो बच्चों, इन टुडेज क्लास we have taken these 8 personalities or personality traits of entrepreneurs according to Bill Wagner. पहला है trailblazers, who are pioneers in business. Go-getters, second, who are the ambitious achievers. Managers, strategic leaders. Motivators, catalyst for change. Authoritarians, the backbone of business. Collaborators, people focused entrepreneurs. And last but not the least, the diplomats. Believe me on this, this is a beautiful start of Unit 3. But Unit 3 is very important from the point of view of your examination and from the point of view of understanding the subject, that is entrepreneurship. You must have seen so many different classes on so many different subjects, but rarely you'll see these detailed classes on entrepreneurship. And at Mavericks India Solution, we are, you know, uh, we are committed to give you detailed classes for 11th graders and 12th graders completely on entrepreneurship. That is CBSE syllabus. Plus, bacho, when you are attending our classes, you will always get a rigorous practice section. जहां पर पहले हम आपको देंगे important vocabulary words from the class. Second is sure short 10 questions along with sure short answers to those questions. Then synopsis of today's class. Then 10 objective type questions along with answers, true and false statements along with answers, and fill in the blanks along with answers. So, bacho, you'll check out anywhere. You will not get, this much detailed classes from anywhere. And why? Because we people are committed to make the students excel in the board's examination so that they can score very good marks and they can see their future bright. So, Bacho, I'm really liking your response on my channel where you are regularly watching the classes, sessions. And yes, we are trying our level best to provide you the maximum content before the examination gets started and to facilitate you. And believe me on this, our classes are free of cost. We're not charging a single penny for it. So we need your support. We need your messages, appreciation, so that other students across the country, they can also avail the benefits of our class. So, Bachu, thank you very much for today's class. See you in the next class. Bye bye for now. God bless you all. Take care. And always remember, with Mavericks India Solution, you will always gain. Bye bye for now. God bless you.